Faith and prayer both are invisible. Faith and prayer both are invisible, but they convert the impossible things into possible. A very good morning to all my dear students and a warm welcome in the class of Accounts Standard 11th. Yes, we are continuing with the same chapter, chapter number 5 from your second part of textbook. Name of the chapter is Financial Statements of Business Organizations, Final Accounts. In our last class, we have gone through with the very basic and the first question of your final accounts, that was question number 6. In my today's e-class, I am going to make you understand, or I am going to teach you question number 7, which is on your page number 192. Before I start, let us revise few things. The three components of final accounts are trading account, profit and loss account, and balance sheet. All the balances related to goods in trading account, all expenses and incomes in profit and loss account, assets and liabilities in balance sheet. All the debit balances of your trial balance will either appear in the debit side of trading account, debit side of profit and loss account, or balance sheet asset side. And all the credit balances of trial balance will appear in the credit side of trading account or P&L account or balance sheet liabilities side. Trial balance has single effect same side, and adjustment has dual effect, one debit, one credit. Question 7 on page 192. What it says: prepare final accounts from the trial balance and adjustments of Pankaj as on 31/3/2015. On the next page it is continuing. Trial balance आपका next page पे भी continue हो रहा है, and there are in all 9 adjustments to be solved. Very first is closing stock of 1,65,000, out of which the market value of 50% stock is 10% more and market value of remaining goods is 10% less. So this is the adjustment of closing stock in a very different and unique way. अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस हैं. अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेजेस हैं, इसके लिए हम कहाँ टिक करेंगे? परचेजेस के ऊपर. नेक्स्ट अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न है, वापस से हमें परचेज के ऊपर ही टिक करना होगा, सेकेंड वन एज वेल. नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न. 2 एडजस्टमेंट्स हैं सेल्स से रिलेटेड, सो डबल टिक ऑन सेल्स. आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000 के वेजेस आउटस्टैंडिंग हैं. वेजेस दिखाई दे वहां पे आप टिक मार्क कर लेंगे. नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट. गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा आपके गुड्स बाहर जाते हैं, उसे अपन परचेज टिक करते हैं. द थर्ड टिक मार्क ऑन परचेज. गुड्स ऑफ 7,500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए वापस से हमने गुड्स लिए हैं. अगेन इट विल बी ऑन परचेज अकाउंट बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट अदर देन सेल्स. पर्सनल यूज है, ऐड कहां करना होगा? ड्राइंग्स में, बिकॉज ड्राइंग्स क्या डिफाइन करती हैं? गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज. लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 7,500 wrongly debited to labor charge. वो था किसका? मशीन का इंस्टॉलेशन था, बाय मिस्टेक कहां चला गया है? लेबर चार्ज में चला गया है. लेबर चार्ज मींस नथिंग बट वेजेस, तो वेजेस पे एक और टिक करेंगे और आएगा किसमें? वो मशीन में आएगा, सो मशीन को भी टिक मार्क करेंगे. नाउ एज पर आवर डिसाइडेड पॉलिसी हम क्या करेंगे? पहले सारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट इफेक्ट्स, उसके बाद सारे डेबिट इफेक्ट्स, और फिर जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स आते होंगे वो साथ में सॉर्ट आउट करते जाएंगे. फाइन. नाउ दिस इज trading account of Pankaj for the year ending on 31/3/2015. Along with that,
there is profit and loss account of Pankaj for the year ending on 31/3/2015. Along with that, balance sheet also you are supposed to prepare. Fine. So let us start with the credit balances of ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के सारे डेबिट को सिंगल इफेक्ट होगा, इवन क्रेडिट को भी सिंगल इफेक्ट होगा. द वेरी फर्स्ट दैट इज 6 लाख रुपीस का आपका कैपिटल है. तो जहां पे आपको बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम में कैपिटल दिखाई दे रहा है, राइट इट ओवर देयर 6 लाख रुपीस. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर परचेज एंड सेल्स दोनों दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि 15 लाख आपका क्या होगा, परचेज होगा. तो हम कहां दिखाएंगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सेल्स. हाउ मच? 15 lakh rupees. Is this clear? Now there are two adjustments in relation to sales. What are those? That is अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स. हमने सेल्स किया है पर अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, और जैसे ही हम अभी इसको रिकॉर्ड करेंगे उतने से हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे. लिखेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स 75,000. इट इज वेरी क्लियरली मेंशन दैट इट इज क्रेडिट सेल्स. इसके लिए हमारे डेटर्स भी उतने से बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उधार पे गुड्स बेचे हैं, हमें फ्यूचर में जाके उनसे पैसा मिलेगा. इज दिस क्लियर? नाउ हम यहां पे दिखाएंगे डेटर्स कितने हैं. लेट अस फाइंड इट आउट इन ट्रायल बैलेंस. डेटर्स हैं हमारे 1,35,000 के. इज दिस क्लियर? प्लस क्या है हमारा? अनरिकॉर्डेड सेल्स ऑफ 75,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न. हमने सेल्स रिटर्न किया है, वो हमारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मच इज योर सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न इज ऑफ 60,000. सेल्स में से क्या होता है? सेल्स रिटर्न माइनस होता है 60,000. अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न भी है. अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न भी क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे. दैट इज ऑफ 22,500. अभी सेल्स रिटर्न है, उतने से हमें डेटर्स पैसा देंगे नहीं. कितने अपन को नहीं मिलेंगे? 22,500. बिकॉज इन लोगों ने क्या किया है? सेल्स रिटर्न किया है. माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 22,500. इज दिस क्लियर? मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेजेस में से माइनस. यहां पर अपन दिखाएंगे 2 परचेजेस. परचेजेस हमारे कितने हैं? 9 लाख रुपीस के. फाइन. और माइनस करना है परचेज रिटर्न. हाउ मच इज परचेज रिटर्न? 30,000. नाउ देयर आर 4 टिक्स ऑन परचेज. सो 4 एडजस्टमेंट्स हमारे परचेज से रिलेटेड हैं, वो भी हम साथ में करते जाएंगे. कौन सा है? फर्स्ट, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 60,000. अनरिकॉर्डेड है, हमें रिकॉर्ड करना है. अनरिकॉर्डेड परचेजेस. अनरिकॉर्डेड परचेजेस आर ऑफ 60,000. हमने गुड्स खरीदे हैं पर उनका एंट्री अपन ने अभी तक नहीं दिखाया है. जैसे ही अपन दिखाएंगे हमारे क्रेडिटर्स उतने से बढ़ जाएंगे. सो लेट अस चेक इट आउट. हाउ मेनी आर क्रेडिटर्स? इट इज ऑफ 1,02,000. 1,02,000 प्लस unrecorded credit purchases of
60,000. Is this clear? One more adjustment is there. Unrecorded credit purchase return. Purchase return है 7500 का. Purchase return क्या होता है? माइनस unrecorded credit purchase return of 7500. यहां से माइनस, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग में से डेबिट साइड में से माइनस कर रहे हैं. डेबिट का माइनस इंडिकेट्स क्रेडिट, और अभी अपन को डेबिट इफेक्ट देना है. उतने से हमें हमारे क्रेडिटर्स को कम पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज हमने गुड्स क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं 75,000 के. क्रेडिट में से भी क्या कर रहे हैं, माइनस. सो क्रेडिट का माइनस इंडिकेट्स डेबिट एंड डेबिट का माइनस इंडिकेट्स क्रेडिट. लाइक दिस वे वी आर गिविंग the two effects of adjustments. Next is goods of 15,000 are destroyed by fire. Goods going out other than sales. Purchase में से क्या करोगे, माइनस goods lost due to fire. कितने के हैं, 15,000. इज दिस क्लियर? और साथ में क्या बताया है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम ऑफ होल अमाउंट. इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि पूरे के पूरे 15,000 के गुड्स जो हैं उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. सो दिस विल बिकम अवर असेट. इट विल बी insurance company claim. How much? 15,000. Fine. One more is there. 8th number, goods of 7,500 withdrawn for personal use. Personal use के लिए हमने क्या किया है, goods को withdraw किया है. Again it will be goods going out other than sales. Purchase में से minus goods withdrawn for personal use. कितने के हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज किए हैं, 7,500. ओनर ने अपने लिए गुड्स विड्रॉ किए हैं. क्या होगा, उसके ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा. पर ड्राइंग्स ओरिजिनली क्या करेंगे अपन, यहां पे माइनस, कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट. ड्राइंग्स हमारी कितनी है, लेट अस चेक इट आउट. ड्राइंग्स विल हैव द डेबिट बैलेंस दैट इज ऑफ 18,000. और यहां पे क्या दिखाना है, विड्रॉन, या फिर इसको बोल सकते हैं एडिशनल. दोनों नाम लिख सकेंगे, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या एडिशनल. हमने और भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं. इज दिस क्लियर? लायबिलिटीज में से क्या कर रहे हैं, माइनस. दैट मीन्स क्रेडिट में से माइनस कर रहे हैं तो डेबिट, और यहां पे डेबिट में से माइनस किया तो क्रेडिट. ऐसे करके हमने दोनों इफेक्ट्स इसके दिखा दिए. इज दिस क्लियर? सो परचेज के हमारे ऑल 4 टिक्स डन हैं. उसके बाद आपका क्रेडिट साइड में आता है डिबेंचर इंटरेस्ट रिसीव्ड. नाउ दिस इज द आइटम ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम साइड आप दिखाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. कितना है, जस्ट चेक इट आउट. इट इज 15,000. इनका कितना इफेक्ट आएगा, सिंगल इफेक्ट. नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड. अगेन इट इज रिसीव्ड, सो इट इज योर इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड, हाउ मच, 6,000. सारे क्रेडिट बैलेंस में ही जा रहा है. नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन रिसीव्ड ऑफ 3,000. नेक्स्ट आपका क्या है, 10% बैंक लोन. 10% अपन का क्या है, बैंक का लोन है. अब अपन को क्या करना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर में लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन है, इसके लिए 10% बैंक लोन ऑफ
3 लाख रुपीज. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपका बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल आपके लिए क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज. सो यहां पे आप लिखेंगे बिल्स पेएबल 22,500. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपके हैं क्रेडिटर्स, वो लिख दिए हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट. रेंट हमें मिलना बाकी है. अगेन इट विल बी योर करंट लायबिलिटीज. आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 1500. फाइन. ऐसे करके हमारे सारे क्रेडिट बैलेंसेस डन हैं. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से. डेबिट में ड्राइंग्स हमने लिख लिया, परचेज लिख लिया. नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? सेल्स में से माइनस. दैट इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट इज अपन का स्टॉक. स्टॉक में क्या दिया हुआ है? 1414. दैट मीन्स इट इज योर ओपनिंग बैलेंस. ट्रेडिंग में फर्स्ट आइटम आपको लिखना होता है टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ 90,000. नेक्स्ट इज योर कैरिएज इनवर्ड. ट्रेडिंग का है टू कैरिएज इनवर्ड. हाउ मच इट इज? 15,000. नेक्स्ट आफ्टर दैट इट इज सैलरी. सैलरी कितना है आपका? 1,80,000. सैलरी विल बी योर एक्सपेंस ऑफ P&L. यहां पे दिखाएंगे टू सैलरी 18,000. फाइन. 1,80,000 सॉरी. नेक्स्ट है तुम्हारा वेजेस. वेजेस के ऊपर डबल टिक मार्क्स हैं. वेजेस आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टू वेजेस. वेजेस आर ऑफ 60,000. नाउ let us go through with the adjustment. Adjustment number 6. What it is? Outstanding wages 15,000. हमें और wages देना बाकी है. ऐड करेंगे outstanding wages of 15,000. डेबिट में प्लस किया, डेबिट होगा. वन मोर विल बी क्रेडिट. हमारा वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा. करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000. इज दिस क्लियर? वन मोर इन रिलेशन टू वेजेस यहां पर गिवन है आपको. लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस. थे वो खर्चा किसका? मशीन के इंस्टॉलेशन का, जो मशीन में जुड़ना चाहिए, ऐड होना चाहिए, बट बाय मिस्टेक आ गया है कहां पे आपका? लेबर चार्ज. दैट मींस वेजेस में से क्या करेंगे हम? डिडक्ट करेंगे. माइनस लिखेंगे यहां पे wrongly recorded of 7,500. और ऐड कहां होगा आपका? मशीन्स में. और मशीन्स कहां आती हैं? फिक्स्ड असेट्स में. यहां पे ऐड होगा, आएगा लेबर चार्जेस ऑफ 7,500. एंड मशीन्स में देखो टिक मार्क किया हुआ है. मशीन इज ऑफ 1,35,000. Is this clear? Now, after wages के बाद अपन का आता है ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस इज ऑफ 1,20,000. 1,20,000 आपका आएगा P&L डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000. नेक्स्ट अपन का डेबिट क्या है? डेटर्स हैं, वो हो गया. बिल्स रिसीवेबल है. बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपके लिए? करंट असेट्स 45,000. बिल्स रिसीवेबल ऑफ 45,000. नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. अगेन इट इज योर एक्सपेंस. सो P&L में डेबिट साइड टू advertisement expense. Advertisement expense is of 75,000. Is this clear? Next is stationery printing expense. वापस से वो तुम्हारा P&L डेबिट एक्सपेंस है. stationery printing expense of 9,000 rupees.
rupees. Fine. Moving further, मशीनरी लिख दिया. बिल्डिंग तुम्हारा क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स होते हैं. बिल्डिंग कितनी है? 4,50,000. बिल्डिंग 4,50,000. Next, furniture 90,000. Again, furniture is your fixed assets. 90,000 बैलेंस शीट में. रेंट, दिस इज योर एक्सपेंस. रेंट अपन का कितना दिया हुआ है? 18,000. टू रेंट 18,000. इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स. तुमने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है, तो अलग से हेडिंग है ही बैलेंस शीट में. इन्वेस्टमेंट आपने डिबेंचर्स में किया है. इन्वेस्टमेंट in 10% debentures of 1,50,000. नेक्स्ट, आपका ये एक्सपेंस है, खर्चा. बैंक लोन आपने जो लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट है 30,000 का. टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 30,000. फाइन. ऐसे करके हमने सारे डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट कर दिए हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट अपन का क्या है? क्लोजिंग स्टॉक. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. नाउ फॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड. बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू किया जाता है? आई एम रिपीटिंग, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. अब क्लोजिंग स्टॉक दिया कितने का हुआ है? 1,65,000 का. राइट इट ओवर हियर. 1,65,000 आउट ऑफ विच वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक इज. अभी अपन को क्या करना होगा? बाइफर्केशन करना होगा. यहां पे इसका 50%, यहां पे भी 50%. 1,65,000 का आपको क्या करना है कैलकुलेटर पे? 50%, दैट विल टर्न अप टू 82,500 ऑन बोथ द साइड्स. उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? 10% मोर है इसका वैल्यू. दैट मीन्स इसमें आपको क्या करना है? 10% ऐड करना है. फाइन. 8250. अब जैसे आप 10% ऐड करेंगे इट विल टर्न अप टू 90,750. दिस इज योर बुक वैल्यू, दिस इज योर मार्केट वैल्यू. और क्या बोला है आपको? एंड मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स इज 10% लेस. इसमें क्या बताया है? 10% आपको लेस करना है. दैट इज 8250. अब क्या करोगे? 82,500 का 10% माइनस इट विल टर्न अप टू 74,250. दिस इज योर बुक वैल्यू, दिस इज योर मार्केट वैल्यू. हमें कौन सा कंसीडर करना होता है? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. इन दोनों में से लोअर कौन है? बुक वैल्यू. यहां पे बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, तो हम क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू. सो देयरफॉर टोटल 82,500 प्लस 74,250 विल कम टू 156,750. ये अपन का क्लोजिंग स्टॉक होगा. अब क्लोजिंग स्टॉक आपका कहां आएगा? एक आएगा आपका ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 156,750 एंड अनदर इफेक्ट विल बी इन बैलेंस शीट asset side closing stock 156,750. Is this clear? Now हमें क्या करना होगा? बैलेंसिंग. बिफोर बैलेंसिंग जितने भी ये आउटर कॉलम्स आपने नहीं निकाले हैं प्लस माइनस करके इनको आप बाहर निकालेंगे. फाइन. सेल्स का आउटर कॉलम आएगा 1492500. लाइकवाइज
परचेज का आएगा तुम्हारा 9 लाख, वेजेस को जब आप आउट करेंगे देन इट विल बी 67,000 और आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एवरीथिंग इज डन। यहां पर है आपका मशीन में आपको बाहर निकालना होगा 142500। ओवर हेयर डेटर्स भी आपके क्लियर होंगे, आउटर कॉलम में जाएगा 187500। क्रेडिटर्स का जब आप टोटल करेंगे आउटर कॉलम विल बी 154500। फाइन, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ टोटलिंग। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यहां पे जब आप टोटल करेंगे इट विल बी 1649250 शिफ्टेड ऑन द डेबिट साइड एंड डिडक्ट ऑल दीज बैलेंसेस एंड यू विल अराइव टू जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज 576750। ये जीपी यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बन के क्रेडिट साइड अपन को ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 576750। अभी यहां पे आपको इनका टोटलिंग करना होगा। क्रेडिट साइड का जैसे ही आप टोटल करेंगे इट विल बी 600750 शिफ्टेड ऑन द डेबिट साइड 600750 माइनस ऑल दीज हमारे एक्सपेंसेस, यू विल अराइव टू नेट प्रॉफिट। योर नेट प्रॉफिट इज 168750। ये नेट प्रॉफिट आपका क्या होगा, बैलेंस शीट में कैपिटल्स में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 168750। इसमें से ये सब कुछ आपको माइनस करना है। योर आउटर कॉलम विल बी 743250। लास्ट कम लास्ट आपका बैलेंस शीट का ये जो टोटल है वो सेम आना चाहिए। सारे हमें यहाँ पे बैलेंस शीट्स के जो बैलेंसेस हैं उन्हें टोटल करना होगा 123675। इवन ऑन द असेट साइड आपको जो बैलेंस लेना है दैट इज 123675। Is this clear? Now your today's homework is question number 7, which I taught you right now, along with that illustration number 25, which is as good as this sum. Thank you students for listening.